Hello, all you English lovers, English speaking aspirants. This is Ashish Kumar, yet in your service to make you a very good speaker of English language. मैं आशीष कुमार आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं and I have been trying to teach you the ways, the tips, the ideas, the methods that you can apply to speak good and fluent in English. ये मेरी कोशिश है और इसी चीज पर I have already made few videos. मैंने कुछ वीडियोस बना ली हैं. If you have been watching those videos, I'm damn sure that you'd have got some sort of knowledge, some sort of skills, some sort of confidence that you can speak English in front of anyone. और अगर आपने ऐसा नहीं किया है, so please start watching my videos. अगर आप वीडियोस देखना शुरू कर देंगे तो I can assure you one thing that definitely sitting at your home, watching on mobile or even watching on TV on laptop and just simply following few steps, कुछ तरीकों को पूरा करके and just practicing yourself, you can definitely make yourself a very good speaker of English. Not only you'll have very good command over words, structures, sentences, tenses and translations. You'll also have got immense knowledge regarding understanding the stuffs. कई बारी अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स भी कई बारी अच्छे जैसे फॉर एग्जाम्पल द हिंदू पेपर की बात कर लें, उसके एडिटोरियल सेक्शन की बात कर लें, वो नहीं समझ पाते हैं. ओनली स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी इजी, बट स्पीकिंग इंग्लिश विद कमांड इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बट नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. अगर आप मेरे तरीकों को फॉलो करें, अगर आप रेगुलरली हमारी क्लासेस ज्वाइन करें, तो आई कैन अश्योर यू, मैं आपको एकदम अश्योर कर सकता हूं कि यू विल डेफिनेटली स्पीक वेरी गुड इन इंग्लिश. आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेंगे. तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आप कुछ भी हमारे क्लासेस की तरफ से जो भी नई वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे और आप हमेशा अच्छी इंग्लिश सीखने के प्रति अग्रसर रहें. दिस इज आवर अटेम्प्ट. तो चलिए सीखते हैं स्पोकन इंग्लिश. आज की क्लास में मैं जो आपके लिए लेकर आया हूं, इट इज द यूज ऑफ कैन एंड मे. I have already taught you in my previous videos how to introduce yourself, अपने आप को कैसे परिचित कराएं, how to introduce family, how to talk to other ones, conversations कैसे करें, even how to deliver speeches, speech कैसे देंगे, उसको artistic कैसे बनाएंगे. All these sort of things I have already taught you in my previous videos. मैंने इन previous videos में ये सारी चीजें सिखा दी हैं. If you are a new one, go back, just scroll down to our playlists or our videos. आप हमारे videos में scroll down करके देख लें. There are so many videos that can help to satiate your needs. आपके needs को satiate करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए बहुत सारी videos बनी हैं. आप देखें, आप definitely beneficial होंगे, definitely आपको फायदा होगा. One thing I'd like to tell you in today's class and in today's video is that in speaking English, apart from having good knowledge of tense, a little sort of voice, a little sort of other stuffs, vocabulary, कुछ structures वगैरह, इन सब के अलावा भी the thing that matters the most is the use of modal verbs, the use of modal auxiliary verbs. Spoken English में modal verbs और modal auxiliary verbs का बड़ा use होता है और इनसे कई बारी हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं, बोलने में यूज करते हैं, अगला बोलता है तो उसे समझते हैं. तो मॉडल वर्ब्स की सीरीज को भी हम लोग देखेंगे और उस सीरीज में जो पहले वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है कैन और मे. इफ वी कैन गो बाय द हिंदी ऑफ इट, बोथ द वर्ड्स हैव द सेम हिंदी मीनिंग, दैट इज सकना. दोनों शब्द का जो हिंदी शाब्दिक अर्थ है वो है सकना. But in terms of uses, if you talk about the uses of can and may, अगर आप can और may की uses की बात करें तो they are used in different ways or in different methods or in different places you may say, in different senses you may say. ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीकों से यूज होते हैं. You might have read many a thing related to it. आपने इनके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, बट मैं आपको यहाँ सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि कैन और मे को किस तरह से बोलने में यूज करना है, क्या सेंस होना चाहिए और अगर कोई बोलता है तो आपको क्या समझना चाहिए और उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो उसे रिप्लाई क्या करना चाहिए. तो देखें, कैन इज यूज्ड फॉर श्योरिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, पावर. कैन का जो इस्तेमाल है वो
ताकत, सामर्थ्य, क्षमता 100% होने के लिए किया जाता है। कैन का इस्तेमाल इसी तरह की चीजों के लिए किया जाता है। देयर मे इज यूज फॉर पॉसिबिलिटी, मे का यूज जो है वो संभावना, प्रोबेबिलिटी यूज करने के लिए करते हैं, कभी भी 100% के लिए नहीं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर टू सीक परमिशन, परमिशन लेने के लिए। रिक्वेस्ट कह सकते हैं उसको, रिक्वेस्ट करने के लिए। गेस करने के लिए आप यूज कर सकते हैं विश और कर्स, विश और कर्स आशीर्वाद श्राप देने के लिए। इमेजिनेशन कल्पना करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए वी यूज मे, इन सारी चीजों के लिए हम मे यूज करते हैं। नाउ लेट्स गो बाय फ्यू एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि केवल कह देने से तो आप नहीं मान लेंगे कि हाँ ऐसा होता है। वी नीड टू गो बाय फ्यू एग्जांपल्स, हमें कुछ एग्जांपल्स लेने होंगे। लेट्स गो बाय फ्यू एग्जांपल। इफ आई एम सेइंग आई कैन बीट यू, तो द हिंदी वुड बी कि मैं तुम्हें पीट सकता हूं। नाउ दिस इज द हिंदी, मैं तुम्हें पीट सकता हूं। बट व्हाट इफ आई एम सेइंग, क्या हो यदि मैं कहूं या मैं कह रहा हूं कि आई मे बीट यू ऑल्सो हैव द सेम मीनिंग, इसका भी सेम मीनिंग हो गया कि मैं तुम्हें पीट सकता हूं। तो कैसे समझेंगे कि वेयर कैन वी यूज कैन एंड वेयर कैन वी यूज मे? कैसे समझेंगे कि कहां हम कैन का यूज करें और कहां हम मे का यूज करें, कहां हम कैन का यूज कर सकते हैं और कहां मे का यूज कर सकते हैं? ट्राई एंड अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए। इफ वी आर सेइंग कि आई कैन बीट यू, अगर हम कह रहे हैं आई कैन बीट यू, तो इट मीन्स I as a subject, I as a person has enough capacity, has enough power that to perform a task, and that task is beating you. But at the moment if you are saying I may beat you, it means I may have the power, may not have, I may be beat someone or may be beaten, so it's not sure. अगर I can beat you बोलो तो इसका मतलब हुआ कि I रूपी सब्जेक्ट को इतना ताकत है, इतना सामर्थ्य है, इतनी क्षमता है कि वह 100% यू को पीट ही देगा। और जब ये 100% हो गया, वहां कैन का यूज किए। बट अगर आप कह रहे हैं आई मे बीट यू, तो इसका मतलब हो गया हो सकता है, हो सकता है कि आई यू को पीट दे, हो सकता है यू से पिटा भी जाए, हो सकता है कि आई को मन करे तो यू को पीटे, मन ना करे तो नहीं पीटे। लेकिन जैसे ही कैन कहा तो कैन का मतलब ही हो गया 100%, एकदम तय है कि आई यू को पीटेगा ही पीटेगा। तो when the things are 100% we use can, जब चीजें 100% हो जाएंगी कैन का यूज करेंगे। एंड इफ थिंग्स आर 50-50 प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी की बात आएगी तो वहां हम मे का यूज करेंगे। ठीक है, कुछ और चीजों को, कुछ और एग्जाम्पल को ले लें। सपोज इफ आई एम सेइंग इन हिंदी कि वह रानी की मां होगी। So now if you are going by गागेगी, कई लोग जो है हिंदी ट्रांसलेशंस का अंत देखते हैं कि उसमें गागेगी लगा हुआ है और उसे फ्यूचर का मान करके परहैप्स इसे बना देंगे कि शी विल बी रानीज मदर। ये गलत हो जाएगा। Why is that so? Let me explain you. मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आजकल शादी विवाह का सीजन चल रहा है, हमारे यहाँ तो चल रहा है, जो वीडियोस देख रहे हैं आप लोग, पता नहीं आप लोगों के यहाँ चल रहा है कि नहीं, बट एट द मोमेंट हमारे यहाँ जो है ना, ये पीक सीजन चल रहा है शादी विवाह का, वेडिंग सीजन चल रहा है हमारे यहाँ। तो अभी क्या है कि जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, ये सब एथनिक वियर पहनते हैं। और एथनिक वियर मतलब वो लहंगा, कुर्ता पजामा, शेरवानी, ये सब को एथनिक वियर कहते हैं। तो वे सब पहनते हैं। तो इसमें क्या, छोटी लड़कियां भी कई बार जो हैं वो उम्र दराज लगने लगती हैं। वो उस तरह से अगर आप उनको देखोगे तो लगेगा कि मे बी कोई बड़ी महिला खड़ी है, खासकर पीछे से तो हमेशा धोखा होता है, वही मेरे साथ तो हुआ है। तो सपोज कि किसी ने किसी बंदी को देखा और बोला कि वो रानी की माँ होगी, और उस बंदी की अभी शादी तक नहीं हो रखी, बच्चे की तो बात छोड़ दी जाए, उससे शादी भी नहीं हुई। तो इसका मतलब अगर आप उसको फ्यूचर में बना देंगे कि शी विल बी रानीज मदर, तो क्या अर्थ निकलेगा पता है? कि वो जो लड़की है कल को उसकी शादी होगी, शादी होने के बाद उसे एक बेटी पैदा होगी, बेटी का नाम रानी रखाएगा, तब जाकर वो रानी की माँ होगी। मतलब आप उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अगर किसी ने सुन लिया, सपोज उसी बंदी ने सुन लिया, तो वो बुरा मान जाएगी, हो सकता है रिएक्ट कर दे, हो सकता है आप फेरे में पड़ जाए। आप किसी को इस तरह से फ्यूचर नहीं बता सकते।
आप क्या कर रहे हैं, एक गेस कर रहे हैं कि वह रानी की माँ होगी। आपने एक सिंपली गेस किया। तो देखिए गेस करने के लिए लिखा हुआ आपने कैन की जगह मे यूज करना है, विल की जगह मे यूज करना है। तो आपको इस तरह सेंटेंस बनाना होगा कि शी मे बी रानीज मदर। मदर ऑफ रानी इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो भी लिविंग होते हैं उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस यूज करते हैं काके की के लिए। तो हो गया शी मे बी रानीज मदर। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि आज वर्षा होगी या आज वर्षा हो सकती है, तो आप उसे कैन से नहीं बना सकते, आपको उसे इस तरह बनाना होगा इट मे रेन टुडे। क्यों भाई? बिकॉज यू आर नॉट 100%, आप 100% नहीं है। इफ यू आर 100%, अगर आप 100% है मौसम के ऊपर आपको ये दिखाना है कि हो ही गा ही आज बारिश की होना, बारिश का जो होना है वो तय है, एकदम 100% है, तो आप यूज करिए इट कैन रेन टुडे। आप उस पर थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं, इट कैन रेन टुडे। बट आप 100% नहीं है, मौसम देख के लग रहा है कि होगी, होगी नहीं होगी, आप यू आर नॉट श्योर, तो आपको कहना पड़ेगा इट मे रेन टुडे। आगे बात समझ में, क्योंकि यू आर हैविंग अ गेस। आपने देखा होगा अंदर आने के लिए हम लोग अक्सर यूज करते हैं मे आई कम इन, मे आई कम इन। ज्यादातर यही सेंटेंसेस यूज होते हैं, मे आई कम इन। चाहे क्लासेस में आप जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, किसी ऑफिस वगैरह में जा रहे हो, किसी से भी परमिशन लेना है तो आप पूछते हो मे आई कम इन। हम लोग जनरली नहीं कहते कैन आई कम इन। व्हाई इज दैट सो? देखिए मॉडल वर्ब्स की खासियत है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हर का एक थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा पोलाइट हो जाता है, विनम्र हो जाता है। तो कैन से अगर आप परमिशन ले रहे हो तो इट मींस यू हैव इनफ पावर दैट इवन इफ यू आर टेकिंग द परमिशन टू, दैट पर्सन मे नॉट और कैन नॉट स्टॉप यू फॉर कमिंग, स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग द थिंग दैट यू हैव आस्क्ड फॉर। ऐसा दिखलाएगा कि कैन का मतलब ये हो गया कि आपके पास इतनी ताकत है, इतना सामर्थ्य है कि अगले से सिर्फ आप एक पूछ रहे हैं, अगला आपको परमिशन ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अंदर जाएंगे। सपोज पूछ रहे हैं मे आई कम इन की जगह कैन आई कम इन, तो इसका मतलब ये हुआ बस आपने ध्यान दिला दिया, अगला आपको रोक ही नहीं सकता है। बट वहां आप मे आई बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगले ने कहा कि यस यू मे, तो आप अंदर जाएंगे, और किसी ने कह दिया नो तो आपको बाहर रुकना पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एज ए टीचर, अगर मैं अपने क्लास में जा रहा हूं और मैंने देखा कि काफी सारे बच्चे दे आर हैविंग अ डिस्कशन और दे आर टॉकिंग अबाउट सम इश्यूज एंड दे आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू हु इज कमिंग एंड टू हु इज गोइंग। वो नहीं देख रहे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और वहां पर मैं गया और मैंने देखा कि बड़ा बिजी चल रहा है माहौल, तो मैं उसे इशारे दिलाने के लिए या अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए मैंने सपोज कह दिया कि कैन आई कम इन। अब उनका ये अथॉरिटी नहीं है कि मुझे वो रोक दें कि नहीं आप नहीं आ सकते, वो बस मैंने कहा, उनको अथॉरिटी नहीं है। बट अगर किसी स्टूडेंट को मेरी क्लास में आना है तो उसे तो पूछना पड़ेगा मे आई कम इन। अगर मैंने कहा यस तो ही वो अंदर आएगा, मैंने कहा नो तो वो नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से कैन और मे के बीच में यही बेसिक डिफरेंसेस है, जैसा ऊपर लिखा हुआ है कि अगर हमें, अच्छा आप ये करने के लिए, विश और कर्स करने के लिए भी मे का यूज करते हैं। देखिए ना, हम लोग कहते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू, तो वो मे से ही बनता है। हालांकि वहां सकना हिंदी नहीं आता फिर मे का हिंदी फिर हो जाता है भगवान तुम्हारा भला करे। श्राप देना है, सपोज मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, भगवान करे कि तुम नरक में जाओ या भाड़ में जाओ, ऐसा बोलना है। तो कई बार मे और यू सब खा के हम यहां से ही बोल देते हैं गो टू हेल, तो ऐसा भी बोला जाता है, लेकिन उसमें मे जो है छुपा हुआ रहता है। तो मे का यूज हम विश कर्स करने के लिए भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगेन आपको मैं बता दूं कि कैन सिंबलाइजेस 100% पावर, श्योरिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, and may is used for possibility, probability, guess, wish, curse, imagination, कल्पना करने के लिए, probability, संभावना के लिए may का यूज होता है। और अगर आप इसको संभाल करके यूज करना शुरू कर देंगे तो आपको लोगों की चीजें भी समझ में आने लगेंगे कि अगले ने आपको क्या बोला है। कोई कह रहा है सपोज कैन आई टेक इट, तो कैन आई टेक इट बोलने का मतलब ये है कि अगले ने जिसने आपको कहा है उसको आप ना भी बोलेंगे तो वो ले ही लेगा, उसके पास ऐसा पावर है। लेकिन अगर कोई को रिक्वेस्ट ही करना है तो पूछेगा मे आई टेक इट, क्या मैं इसे ले लूं? अगर आप हाँ बोलेंगे तो ही लेगा, आप ना बोलेंगे तो वो नहीं लेगा। ये छोटा सा बारीक डिफरेंस है कैन और मे का। तो आई होप आपको कैन और मे का यूज समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द यूज ऑफ कैन एंड मे,
start using while you speak in English, start using them and start listening to the other stuffs. आप दूसरों को सुनना भी शुरू करें, because if you listen to, then you'll definitely understand. आप वाकई समझने लगेंगे, and if you are understanding it, it's not a very hard thing to start speaking. अगर आप समझने लगे तो बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं होता है बोलना. सबसे पहले समझनी जरूरी है, और अगर आपको कोई बात समझ में आने लगी तो you will definitely be able to speak in that. आप उसको बोलने लग जाएंगे. Now, can और make से related कुछ questions बनते हैं, और स्पेशली क्वेश्चंस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि व्हेन वी गो फॉर इंटरव्यू सेक्शंस, जब हम इंटरव्यू सेक्शंस में जाते हैं, ओवर देयर जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं कैन का यूज करके, कैन यू सिंग, कैन यू राइट अ लेटर. तो उसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चंस भी होते हैं कैन को लेकर के, और वो सारी चीजें मैं आपको इंटरव्यू सेक्शंस में बताऊंगा. डोंट वरी फॉर दैट. Those things will be taught to you when we'll be going through some patches of interview classes or mock interview, I must say. Mock इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो real interview तो हो नहीं सकता अभी, तो फिर हम लोग उसको करेंगे. And at that time I will let you know कि what and how to use can to ask questions, and especially one thing I'll be teaching you there, that will be डबल क्रॉस क्वेश्चंस और डबल क्रॉस सेंटेंसेस. मैं ये सारी चीजें उस वक्त आपको बताऊंगा. फिलहाल कैन और मे को लेकर के आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, एंड कीप डूइंग द थिंग्स दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. कीप प्रैक्टिसिंग बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड इफ यू आर प्रैक्टिसिंग it means you are learning. So meet you in our next class and in next video. Hope you have enjoyed the session. If you have enjoyed it, if you have liked it, if you are a newcomer, please do subscribe our channel, and if you have liked it, you are already regular to our channel, please do subscribe, do share and keep promoting us. Thanks for watching, guys. Have a great day.